आप देख सकते हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी पर लगातार जो छात्र हैं, जो तलबा हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें जितने छात्र हैं उतनी ही छात्राएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। हमारे बीच दूसरे स्कूलों की छात्राएं भी यहाँ पहुँची हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? माई सेल्फ एंजल भारती एंड आई एम फ्रॉम ग्रीनवुड स्कूल। ओके, व्हाई यू हैव कम हियर? Sir, to save this university. Sir, because as government has ordered that, has commanded that they will destroy this university. Sir, we are sitting here to save our future and save this university. Because our respected Azam Khan sir has made this university with all dedication and sweat. And our respected Azam Khan sir ने हम हिंदरामपुर के हर नागरिक के हाथों में से चाकू छीनकर कलम देने का वादा किया था, राइट? पर लेकिन क्या गवर्नमेंट इस चीज़ को कर रही है? नहीं भाई, गवर्नमेंट तो हमारे हाथ से कलम छीन रही है destroying this university. मैं गवर्नमेंट से ये पूछना चाह रही हूँ कि who give them permission to play a victim card game with the students by destroying this university? Who? So you want something for other girls? How many girls are coming with you? Sir, actually I am only one to come here. Actually I want to the government to change their decision. Until and unless they will change their decision, we are sitting here and protest for our rights and protest for our future. You are holding Baba Bhimrao Ambedkar portrait with you. What do you want to give the message? Sir, I want to give the message that we have the right to protest. If you are not getting your rights, come and protest for your future. You are having all rights to enjoy. What do you want to say to the students who are accompanying with you? Sir, I want to that come with only one message कि come with us, protest for your future and protest for your upcoming generation also. Do you think your protest will give somewhat result? Yes sir, 100% I am sure that our protest will become a win and we will win. This agitation resembles with Delhi agitation. Do you think so? There is Sir. no relation with they from the Delhi. Actually, I am talking about the education issue, not the. The same thing is that the What's your name? My name is Ikra. I am here and I am the student of law faculty and I am from Uttarakhand, Pithoragarh. The government is saying that the students are not happy to come in the road. Students are not happy to do protest. The government playing a victim card just because of the students are here. And it doesn't matter, it's Delhi, it's Amroha, it's Meerut, it's Rampur. This is our real situation why I'm here in the roadside. The government passed the order, demolish the university. This is not demolition of university. This is the demolition of our future, our future of education. Our future, our education. This is not good. We students really pray to the government. Government, please listen us. अरे स्टूडेंट हो भाई, स्टूडेंट हो ना? अरे स्टूडेंट हो तो 2 मिनट रुक भी जाओ। ओके सर। We are looking here that the girls are protesting and agitating, but the students, male students, are also agitating and protesting for their rights and issues. तो मैं जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद बुरा अली। क्या कर रहे हैं? मैं MA फाइनल का स्टूडेंट हूँ यहाँ से, लास्ट ईयर है मेरा। जी, जौहर यूनिवर्सिटी से। कहना ये चाहता हूँ कि ये जो भी SDM साहब ने क्या कहते हैं अपना ये आदेश दिया है, इसे वापस लें और हमारी जौहर यूनिवर्सिटी को हम बच्चों के लिए पढ़ने के लिए छोड़ें। प्रोटेस्ट करके हम ये जाहिर करना चाहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी सेफ रहे। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इस यूनिवर्सिटी को सेफ छोड़ दीजिए। हमारे पास एक ही रास्ता था जो कि मीडिया के माध्यम से अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाना। सो हम कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि मीडिया हमारी बात को रेज कर रहा है, हमारे इश्यूज़ को उठा रहा है, तो ये बात ज़रूर गवर्नमेंट तक पहुंचेगी। और कोई भी गवर्नमेंट सक्सेसफुल तभी होती है जब वहाँ के लोग, वहाँ की स्टूडेंट्स, वहाँ की एजुकेशन बरकरार रहती है और एक बैलेंस, एक हेल्दी डेमोक्रेटिक बैलेंस बना रहता है। मैं पूरी उम्मीद के साथ
बात कह रही हूँ कि अगर मेरी बात गवर्नर तक जा रही है, यूपी की जो गवर्नर है वो खुद एक महिला है, वो समझ पा रही होंगी कि आज किस स्थिति में हम सारी फीमेल स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठी हुई हैं। एक तो हमें घर से परमिशन बड़ी मुश्किल से मिली है। मैं खुद लॉ की स्टूडेंट्स हूँ, लॉ की नहीं है, हर माँ बाप पेरेंट्स परमिशन नहीं देते, खासतौर से सिंगल डॉटर को। आज जब मैं परमिशन लेकर के यूनिवर्सिटी तक पहुँची हूँ तो आज फिर मुझे क्लास से घसीटते हुए लाया गया है। इस ऑर्डर ने मुझे घसीटते हुए लाया गया है जी। नहीं, हमारे प्रोटेस्ट का आज 5th डे। गाइस प्लीज आज हमारे प्रोटेस्ट को 5 दिन हो गए हैं, जिसमें से बारिश भी है, धूप भी है, गर्मी भी है, बहुत सारी प्रॉब्लम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। हम सारे स्टूडेंट्स मिल करके खाने का इंतज़ाम करते हैं, सारे स्टूडेंट्स मिल करके पंडाल का इंतज़ाम करते हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं हम लोग मिल के कर रहे हैं। क्या आज जो हम अपना जो थोड़ा थोड़ा पॉकेट मनी कंट्रीब्यूशन इसलिए बचा के रखा है हमने? हमारा सेमेस्टर लेट होने को जा रहा है और स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटी में होता है ना तो उसका एक माइंड सेट होता है कि इसको क्या बनना है। वो कंपटीशन की तैयारियां करता है, वो ये नहीं सोचता है कि मैं सड़क पे बैठ करके ये सारी बातें बोलूँगा कि मुझे परमिशन मिल जाए, एजुकेशन की नहीं परमिशन मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें बेबुनियादी हैं। और रही बात, बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है कि यूनिवर्सिटी को नक्शे पास नहीं है इस वजह से कर दिया, या फिर पावर का इस्तेमाल करा, ये करा वो करा। मीडिया बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर एक दिन की मुझे शक्तियाँ मिल जाएं, कोई स्पेशल मुझे ऐसा वरदान मिल जाए और उस वरदान से मैं एक एजुकेशन बना दूं या फिर एक अल्कोहल पॉइंट बना दूं, तो तब मायने ये नहीं रखता कि शक्तियाँ क्या मिली थी, मायने ये रखता है कि मैंने उनका इस्तेमाल कैसे किया। तो अगर आज एजुकेशन का दायरा बन, मुझे आप ये बताइए, आप लॉ की स्टूडेंट हैं और आपका भी शुरुआत है, तो क्या मनोबल कहीं टूटता नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से आपको सड़कों पे बैठना पड़ रहा है अभी से? मनोबल की बात ऐसी है, जब हमारे लोकतांत्रिक, एक तो जो हमारा देश है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जब मैं फॉरेन कंट्रीज़ में देखती हूँ तो वहाँ पे क्लास 1 से लेकर के 12 तक के जो बच्चे होते हैं वो इतने मतलब मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं, स्किल्स उनको सिखाई जाती हैं कि वो 12th के बाद अपने घर को चला सकते हैं। हम 12th के बाद ऐसा सोचना शुरू करते हैं, या तो हमें माना जाता है कि हम बड़े ही अब होना स्टार्ट हुए हैं। जब हम बड़े ही होना अभी स्टार्ट हुए हैं, अब हम फाइनेंशियली थोड़ा सा सोच पा रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें सड़कों पे आना पड़ रहा है। तो मनोबल की बात सीधी सीधी ये है, स्टूडेंट्स सड़कों पे आने के लिए मजबूर हुआ है, शौक से नहीं आया है। आज अगर गवर्नमेंट कह दे कि हम ये ऑर्डर वापस ले रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स खुशी के साथ, फूलों के साथ गवर्नमेंट का धन्यवाद देंगे। अच्छा, आखिरी सवाल ये है आपसे कि पिछले 5 दिन में आपसे कोई आधिकारिक तौर से मिलने आया, कोई आश्वासन? नहीं, हमसे कोई भी अधिकारी मिलने के लिए नहीं आया। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसी बात नहीं बोली गई है जिससे हम थोड़ा सा भी अपना आप को ये फील करा पाएँ। हमारे बस एक ही रास्ता है कि हम अपना आवाज़ को रेस जितना कर सकते करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए दिल से थैंक यू। करना भी चाहिए जिनको एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को पता है। यहाँ सभी छात्र और छात्राएँ संवैधानिक तौर से एजिटेशन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनका कहना यह है कि वो मजबूरी में यहाँ सड़क पर बैठे हैं। वो हालांकि उनका मनोबल भी कहीं ना कहीं टूटता नज़र आया है, लेकिन वो इसको एक तजुर्बे के तौर पे, अनुभव के तौर पे ले रहे हैं। उनका सीधी सीधी मांग यह है कि अगर किसी के पास पावर है तो वो शिक्षा के मंदिर को तोड़ने में ना लगाई जाए, बल्कि उसको शिक्षा मंदिर को चलाने में लगाई जाए। ऑक्सीजन न्यूज़ नेटवर्क के लिए मैं रामपुर से शन्नू खान। कहाँ से आई हैं, क्या नाम है? मेरा नाम अक्सा खान है और मैं बीएससी बायोटेक की स्टूडेंट हूँ, और मैं यहाँ पर अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ प्रोटेस्ट में बैठी हूँ। यहाँ पर हम एक पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए।
जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, सरकार से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने बीच में ऐसे ही आकर बोल दिया कि हम यूनिवर्सिटी तोड़ देंगे। आप ये बताइए, हम लोगों का यहाँ पर फ्यूचर है, हमारा फ्यूचर का क्या होगा? अभी मेरा सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होने को है, मेरा 7 जुलाई को सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला था, लेकिन आज मैं यहाँ रोड पर बैठी हूँ अपनी यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए। अगर कल को ये यूनिवर्सिटी टूट जाती है तो आप मुझे इस बात का जवाब दें कि मैं अपनी स्टडीज़ किधर कंटिन्यू करूँ। उसके लिए तो एजुकेशन एक पॉइंट कैंप लगाया था काउंसलिंग के लिए, तो आपने उनसे बात की? देखिए, मैं उसका भी आपको ये जवाब देना चाहती हूँ कि मैं रामपुर की रहने वाली लड़की हूँ। मैं रामपुर के बाहर नहीं जा सकती अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करने के लिए, और मेरे साथ साथ मेरी ये और भी ज़्यादा ये सारी लड़कियाँ बैठी हैं, ये भी नहीं जा सकती। हम रामपुर के अलावा कहीं अपनी स्टडीज़ कहाँ पर कंटिन्यू करेंगे? हम यहाँ से जाएंगे ही नहीं, हमें यहीं पर ही पढ़ना है, हम यहीं पर ही अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू। हम यहाँ पर आते हैं, हमारे माँ बाप इतने ज़्यादा मुतमईन होते हैं कि हम यहाँ पर इतने सेफ़ हैं, उनको कोई परेशानी ही नहीं होती है। हम अगर बाहर चले जाएँ, आपको पता है कल्चर इस टाइम पर कैसा चल रहा है, अगर हम बाहर चले जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स नहीं होंगे सेटिस्फाई। तो आपको अपना फ्यूचर डूबता नजर आ रहा है, मतलब पूरा अपना जी, साल। बिल्कुल। आप ये बताइए कि सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे बेटी बचेगी? ये बताइए, रोड पर बैठ के बचेगी बेटी? आज हम रोड पर बैठे हुए हैं, हम बचे हुए हैं यहाँ पर बैठकर, ये बताइए आप, इसका जवाब कौन देगा? और हम यहाँ पर किसी से, आप मुझे ये बताइए, यूनिवर्सिटी बनाना कोई आसान बात नहीं है। यूनिवर्सिटी बनाना, इतनी सारी सरकार आई चली गई, उन्होंने कोई एजुकेशन के पर्पस से सोचा? उन्होंने बनाई कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल, कुछ? जो कमियों की बात कही जा रही है उस बारे में क्या सोच रहे हैं? देखिए, मैं इस बारे में बस यही सॉल्यूशन देना चाहूँगी, जो कमी है उनको सुधारें आप, लेकिन यूनिवर्सिटी को गिराने का कोई ये एक अच्छा सॉल्यूशन तो बिल्कुल नहीं है। ये कोई सॉल्यूशन है? आप ये बताइए, है? मैं यहाँ रोड पर बैठी हूँ, यहाँ इतनी सारी लड़कियाँ रोड पर बैठी हैं, तो ये क्या सॉल्यूशन है? हमारा सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है 7 जुलाई से, और हम लोग आज रोड पर बैठे हैं, हमारी स्टडीज़ का क्या होगा? इसका जवाब कौन देगा? बताइए। हम 5 दिन से यहाँ बैठे हैं, कौन हमें देख रहा है यहाँ आकर? तो क्या लग रहा है आपको, अपने एजुकेशन का कोई रिजल्ट निकलता हुआ? मैं इंडिया में रहने वाली एक लड़की हूँ, मुझे पूरा फ्रीडम है कि मैं सब कुछ बोलूँ। मैं यहाँ पर बैठकर ये बोल रही हूँ कि आप यूनिवर्सिटी को नहीं गिरा सकते, इसमें जो कमियाँ हैं आप उनको पूरा कीजिए। नहीं, आपके बैठने से कोई फायदा नजर आ रहा है? कोई भी फायदा नहीं है यहाँ पर। आप बताइए कहाँ पर हमें कौन दे रहा है हमें फायदा? किसी को दिखी कब रहा है कि हम यहाँ पर क्यों बैठे हैं? 5 दिन से लोग बैठे हैं। कुछ नहीं, कुछ भी कोई नहीं। अधिकारी मिल रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है हमें। तो कोई उम्मीद नजर आती है? देखिए, उम्मीद का तो कुछ नहीं पता, आ भी सकती है नज़र, लेकिन आप मुझसे ये सवाल क्या कर रहे हैं? उम्मीद नज़र आती तो मैं यहाँ थोड़ी नहीं बैठी होती अगर उम्मीद कुछ नहीं आती है ना, तो कहो ना कि सीधी उम्मीद नजर अभी आती तो है। कोई भी नज़र नहीं आ रही उम्मीद। मेरा नाम इल्मा है और मैं यहाँ से बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कर रही हूँ। मेरा फाइनल स्टार्ट होने वाला है, लेकिन अब हमारी क्लासेस इस सब के वजह से इतनी ज़्यादा लेट हो गई है, इसमें हमारा लॉस है। आप हमें बताइए, अगर आप हमारी यूनिवर्सिटी तोड़ देंगे तो हमारी फ्यूचर का क्या होगा? आप हमारी यूनिवर्सिटी नहीं तोड़ रहे हैं, आप हमारे फ्यूचर्स तोड़ रहे हैं, आप हमारे पैर तोड़ रहे हैं, आप हमारी शिक्षा खत्म कर रहे हैं। ये कैसी गवर्नमेंट है जो बच्चों से उनके कलम छीन